بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ذکر وزیر اعظم کے دورہ روس کا۔ عمران خان خصوصی وفد کے ہمراہ ماسکو روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم کو ایئرپورٹ پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا جائے گا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات ہوگی۔ افغانستان سمیت خطے کی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ پاک روس گیس لائن منصوبے کے معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے، ایسا امکان ہے۔ تاجر اور تجزیہ کار پاک روس تعلقات کا نیا باب شروع کرنے کے لیے پر امید ہے۔ We have a bilateral relationship with Russia. We really want to strengthen it. عالمی طاقت روس کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کا مشن۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ روس غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا۔ پاکستان اور روس ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر تعلقات کا نیا دور شروع کرنے کے لیے پرعزم۔ وزیر اعظم عمران خان میزبان صدر پیوٹن سے 1-on-1 ملاقات کریں گے۔ اعتماد سازی کے اقدامات سمیت جنوبی ایشیائی خطے کی جیو پولیٹیکل صورتحال اور دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعاون پر خصوصی پیش رفت متوقع ہے۔ یہ جو دورہ ہے یہ بالکل ہمارے بائیلیٹرل ریلیشنز کو تقویت دینے کے لیے اور آپس میں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کو فردر امپروو کرنے کے لیے اور ان کے اندر زیادہ قوت پیدا کرنے کے لیے یہ اہمیت کا حامل ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان سے روس کے نائب وزیر اعظم بھی ملیں گے۔ بحث کے اہم امور پر بات ہوگی۔ وفود کی سطح پر دونوں ملکوں کے اعلیٰ حکام مذاکرات کی میز سجائیں گے، جس میں پاک روس کثیر جہتی شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ زخم جو ہے آہستہ آہستہ وہ بڑھتے ہیں، ہیلنگ ہوتی ہے ان کی، تو لیکن امید ہے کہ یہ وزٹ جو ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا ایک بہت پازیٹیو رول پلے کرے۔ اکنامیکلی بھی ہمارے ان کے ساتھ کچھ کنٹریکٹس جو ہیں کچھ چل رہی ہیں ڈیلز، خاص طور پہ ہماری جو گیس پائپ لائن ہے اس کی 12.5 بلین کی کیپیسٹی ہے، جو کہ بہت ضروری ہے ہماری انڈسٹری کی گروتھ کے لیے۔ وزیر اعظم عمران خان پہلے ماسکو کے تاریخی دورے کے دوران اسٹریم گیس پائپ لائن منصوبے پر دستخط کی امید ظاہر کر چکے ہیں۔ We have got very close now to signing the agreement. In fact, I'm hoping almost that we sign it when I'm in Moscow. عمران خان روس اور پاکستان کے نامور تاجروں سے ملیں گے۔ اس کے علاوہ ماسکو میں قائم اسلامی سینٹر بھی جائیں گے، جہاں روس کے مفتی اعظم سے ان کی ملاقات طے ہے۔ وزیر اعظم 2 روزہ دورے کے دوران ماسکو میں 4 سیزن ہوٹل میں ٹھہریں گے۔ جناب وزیر اعظم عمران خان آج ماسکو پہنچ رہے ہیں۔ ایئرپورٹ پر عمران خان کو گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کل روسی صدر اور ڈپٹی وزیر اعظم سے بھی ملیں گے۔ اسی بارے میں ماسکو سے ہی اپڈیٹ کریں گے سما کے نمائندہ خصوصی عباس شبیر۔ جی عباس۔ جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان کچھ ہی دیر پہلے نور خان ایئر بیس سے ماسکو کے لیے روانہ ہوئے ہیں اور اس وقت میں روس کے دارالحکومت ماسکو میں موجود ہوں، جہاں پر کچھ ہی گھنٹوں بعد وزیر اعظم عمران خان اپنی کابینہ کے ہمراہ پہنچیں گے۔ یہ ایک اہم دورہ کرنے جا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان، جس میں وہ روسی صدر پوٹن سے ملاقات کریں گے، وفود کی سطح پر بھی ملاقات ہوگی، ایک مسجد کا دورہ بھی کریں گے، رشین ٹی وی سے بھی بات کریں گے اور پاکستانی میڈیا سے بھی انٹریکٹ کریں گے۔ آج وزیر اعظم پہنچیں گے اور ہوٹل جائیں گے۔ سب سے پہلے ایئرپورٹ پر ان کو گارڈ آف آنر دیا جائے گا، اس کے بعد کووڈ پروٹوکول کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم جس ہوٹل میں قیام کریں گے وہاں پر ان کو ببل کر دیا جائے گا اور ریسٹرکٹ کر دیا جائے گا۔ کل وزیر اعظم عمران خان اہم ملاقاتیں کریں گے، جس میں روسی صدر پوٹن اور ڈپٹی پرائم منسٹر سے بھی ملاقات ان کی شیڈیول ہے۔ ایک اہم دورہ کرنے جا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان اور کچھ ہی گھنٹوں بعد وزیر اعظم عمران خان ماسکو پہنچیں گے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ماسکو میں رات گئے سے وقفے سے برف باری کا سلسلہ بھی جاری ہے، بڑا کولڈ ویدر ہے اور وزیر اعظم کچھ ہی دیر بعد ماسکو پہنچیں گے، جہاں پر ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا جائے گا اور ان کو گارڈ آف آنر بھی دیا جائے گا۔ عباس شبیر ماسکو سے ہمارے ساتھ تھے۔ بڑا اہم دورہ ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ عالمی صورتحال میں وزیر اعظم کے دورہ روس کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ دنیا کی نظریں وزیر اعظم اور روسی صدر کی ملاقات پر ہوں گی۔ وزیر اعظم بتا چکے ہیں کہ پاکستان کسی گروپ کا حصہ نہیں بنے گا، آزادانہ خارجہ پالیسی برقرار رکھیں گے۔ 23 سال کے بعد یہ ایک بائیلیٹرل دورہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اور اس وقت جو ایک عالمی صورتحال ہے اس میں یہ دورہ اور اہمیت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ تمام اس وقت دنیا کی نظریں جو ہیں وہ پریزیڈنٹ پوٹن اور پرائم منسٹر عمران خان کی ملاقات کے اوپر ہوں گی۔ کل ایک رشین ٹیلی ویژن کے ساتھ RT کے ساتھ انٹرویو میں وزیر اعظم نے خد و خال واضح کیے تھے ہماری خارجہ پالیسی کے،
उसमें उन्होंने ये वाज़ेह किया था कि देखिए हम कतई तौर के ऊपर किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ना ही हमारी ये पॉलिसी होगी, और हम एक अपनी आज़ादाना पॉलिसी जो है ख़ारजा पॉलिसी बरकरार रखेंगे। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात माजी में उतार चढ़ाव का शिकार रहे। पाकिस्तान के अमरीकी कैंप में शमूलियत के बाइस रूस का झुकाव भारत की जानिब रहा। दोनों मुमालिक के ताल्लुकात का अहवाल इस रिपोर्ट में जानिए। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। अमेरिका और सोवियत यूनियन की सर्द जंग के दौरान पाकिस्तान अमेरिकी कैंप का हिस्सा था। 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों में सोवियत यूनियन ने भारत का साथ दिया। 1968 में सोवियत वजीर आज़म एलेक्सी कोसिजिन ने पाकिस्तान का दौरा किया और मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के लिए ताउन के ऐलानात किए। 1971 में रूस ने कराची स्टील मिल के क़याम के लिए मुआहदे पर दस्तखत किए। 1969 में सोवियत अफवाज ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो पाकिस्तान ने उसकी भरपूर मुखालफत की और अफगान मुजाहिदीन का साथ दिया। अफगान जंग के बावजूद 1981 में गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन के क़याम के लिए रूस ने माली और तकनीकी इमदाद फराहम की। 1999 में उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने रूस का दौरा किया। 2010 में पाक फौज के सरबराह ने पहली बार मॉस्को का दौरा किया। 2014 में दिफाई ताउन का मुआहिदा हुआ और पाकिस्तान ने 4 रूसी Mi-35 हेलीकॉप्टर खरीदे। 2015 में रूस ने कराची से लाहौर तक नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन के मंसूबे का मुआहिदा किया। 2019 में रूस ने पाकिस्तान में दिफाई हथियारों की नुमाइश, आईडिया और कसीरुल मुल्की बहरी मशकों में हिस्सा लिया। 2021 में रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने पाकिस्तान का दौरा किया। इसी साल दोनों मुल्कों में गैस पाइपलाइन मंसूबे का मुआहिदा हुआ। 2022 में वजीर आज़म इमरान खान ने रूसी सदर से टेलीफोन पर बातचीत की और इस्लामोफोबिया के हवाले से उनके मौक़िफ़ को सराहा। उससे आने वाली हर खबर पर नजर रखेंगे। फिलहाल लाहौर की बात करेंगे, जहां मुल्तान रोड पर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे रियाज अहमद हमारे साथ हैं। रियाज अहमद, बताइए, रेस्क्यू का काम किया जा रहा है यहाँ पर? जी बिल्कुल, ये मुल्तान रोड पर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनाने की फैक्ट्री है जिसमें आग लगी है और अचानक आग कितनी तेजी से भड़की है कि पूरी जो फैक्ट्री है उसको अपनी लपेट में ले लिया है। इमदादी टीमें जो है रेस्क्यू 1112 वो वहाँ पर मौजूद है, आग बुझाने की कोशिश कर रही है। तकरीबन उनके 8 से ज्यादा गाड़ियां जो है इसको आग बुझाने में मसरूफ हैं। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका और ना ही रेस्क्यू 1112 का ये कहना है कि अभी तक ये भी मालूम नहीं हो सका कि आग लगने की वजह क्या है। ताहम उनका ये कहना है कि अभी तक किसी किस्म के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं। जी बहुत शुक्रिया रियाज, आपने अपडेट किया। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से पहले अपोजिशन की आपस में इत्तेफाक की कोशिशें। मियाँ शहबाज शरीफ के घर जरदारी और मौलाना की बड़ी बैठक। मौलाना का पीपल्स पार्टी को लॉन्ग मार्च मुलतवी करके PDM मार्च में शामिल होने का मशवरा। नून लीग के विफाक में तहरीक अदम एतमाद लाने की तजवीज़। जरदारी का भी इत्तेफाक, गिनती पूरी होने का दावा भी सामने आया। आपको बताएं कि अहम बैठक इस वक्त लगी हुई है। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से पहले अपोजिशन की आपस में इत्तेफाक की कोशिशें भी देखने में आ रही हैं। मियाँ शहबाज शरीफ के घर जरदारी और मौलाना की ये बैठक जारी है। मौलाना का पीपल्स पार्टी को लॉन्ग मार्च मुलतवी करके PDM मार्च में शामिल होने का मशवरा। और आज की बड़ी खबर ये भी है कि अदम एतमाद के शोर में हॉर्स ट्रेडिंग की गूंज भी शामिल हो गई है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दावा किया है कि खातून समेत 3 हुकूमती एमएनएस को पैसों की ऑफर की गई है। पाकिस्तान के 2 बड़े सौदागरों की मुलाकात में तय हुआ कि आप कितने पैसे डालेंगे और हम कितने पैसे डालेंगे। अली अमीन गंडापुर ने इल्ज़ाम लगाया कि आवाम से लूटे गए पैसों को अपोजिशन रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। कम अज़ कम हमारे 3 MNAs ने उनको पैसे ऑफर किए गए हैं अदम एतमाद के लिए। वजीर इत्तलात ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। दावा किया कि अदम एतमाद की कामयाबी के लिए अपोजिशन शर्मनाक हथकंडों पर उतर आई है। अराकीन की बोलियां लगाई जा रही हैं। पाकिस्तान के 2 बड़े सौदागर इकट्ठे हुए, इन दोनों ने रात को जो मुलाकात की और उससे अगर आप हमारे जो MNAs हैं उनके जो रिपोर्ट है या उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उसको आप जोड़ें तो साफ जाहिर है कि रात की मुलाकात में तय ये हुआ कि आप कितने पैसे डालेंगे और हम कितने पैसे डालेंगे। किसने किसको पैसों की ऑफर की, इसका वफाकी वजीर ने कोई जवाब नहीं दिया। बताइएगा कौन कौन से MNAs? 3 MNAs नहीं, वैसे जरा सा इशारा कर दे। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने भी अपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगाया। इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग शुरू की हुई है अपोजिशन ने, और जिस तरीके से ये इन्होंने अवाम का पैसा लूटा है और अब वही पैसा ये जो है रिश्वत के तौर पे लोगों को देकर ये जो हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने भी वफादारियों की कीमत लगाने वालों का नाम बताने से गुरेज किया। किस को ऑफर की है सर?
ये तो अभी नाम तो नहीं बता सकते हम, लेकिन इन्होंने ये शुरू किया हुआ है, लेकिन हमारे इंशाल्लाह लोग हमारे साथ खड़े हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि शिकस्त इस बार भी अपोजिशन का मुकद्दर बनेगी। सबकी आंखों का तारा कौन, बताएंगे आपको इसी बुलेटिन में। मरियम औरंगजेब ने हुकूमती रहनुमाओं के हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। कहा तहरीक इंसाफ के अरकान अपने टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, उन्हें पैसे ऑफर करने की जरूरत ही नहीं। दावा किया कि इमरान खान के इख्तिदार के 15 से 20 दिन रह गए हैं। उन्होंने पैका ऑर्डिनेंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का भी ऐलान कर दिया। इमरान साहब को चाहिए जो 2, 4, 5, 10 दिन रह गए हैं, 15 दिन, 20 दिन इक़्तिदार के, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। पिछले एक हफ्ते से जब से तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन की मुशावरत शुरू हुई है, सुबह दोपहर शाम इमरान खान साहब और कराए के तर्जुमानों की सिर्फ रोना और चीखें सुनाई दे रही हैं। जो अपनी पार्टी इलेक्शन में पैसे इस्तेमाल करता हो, जो बलूचिस्तान में सेनेट के इलेक्शन में पैसे इस्तेमाल करता हो, जो खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन में पैसे इस्तेमाल करता हो, वो कहता है हमें ऑफर किया गया है पैसे पैसे। अपने गरेबान में झांकें, अपनी नालायकी, नाअहली और लूट मार को देखें। आपकी टिकट के ऊपर कोई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, उनको पैसे ऑफर करने की जरूरत नहीं। तुम मुल्क को लूट रहे हो दोनों हाथों से, दाएं और बाएं माफिया और कार्टल्स बिठाकर। अगर हम तुम पे तनकीद करें तो 5 साल सजा, तो 5 साल सजा। ड्रकोनियन काला कानून जो पाकिस्तान के आइन और इंसानी हकूक के मुतसादम है, उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अदम एतमाद की बातें करने वालों को एक दूसरे पर भी एतमाद नहीं है। अपोजिशन इख्तिदार के लिए बेचैन है और रहेगी। उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा है कि जो जमातें अवाम का एतमाद खो चुकी हों वो क्या अदम एतमाद लाएंगी। पहले दिन से ही PTI हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें की जा रही हैं। अपोजिशन की हर साजिश की तरह तहरीक अदम एतमाद भी नाकाम हो जाएगी। अदम एतमाद की भड़क दीवाने की बढ़ है। सरबराह PTM मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर में चौधरी बरादरान से उनकी रिहाइशगाह पर ही मुलाकात जारी है। मौलाना फजलुर रहमान क्या बात करेंगे, चौधरी बरादरान क्या कुछ सुनेंगे, क्या मामलात रहेंगे, इसी सब के ऊपर बात कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे जहांगीर खान हमारे साथ हैं। जहांगीर खान, बताइए कौन से मामलात मजीद रह गए इनको बताने के लिए? अब PDM के सरबराह की हैसियत से मौलाना फजलुर रहमान 5:30 बजे चौधरी बरादरान की रिहाइश गाह ज़हूर लाई रोड पर उनके घर पहुँचे हैं और चौधरी परवेज़ इलाही ने मौलाना फजलुर रहमान का इस्तकबाल किया है। मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे भी इस मुलाकात में शरीक हैं। मुलाकात का जो पहला दौर था वो मुकम्मल हो चुका है, जिसमें दीगर सियासी रहनुमा और कायदीन ने भी शिरकत की है और अब दूसरा दौर जो मुलाकात का है वो शुरू हो चुका है, जिसमें सिर्फ ये 4 शख्सियात हैं, मौलाना फजलुर रहमान, उनके साहबजादे चौधरी परवेज़ इलाही, शुजात हुसैन। मौलाना फजलुर रहमान जो है इस मुलाकात के पहले सेशन में उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ होने वाली मुलाकात के बारे में उनको तफसीली तौर पर आगाह किया है और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से चौधरी बरादरान को आज एतमाद में लेने के लिए ये मुलाकात की जा रही है। अब देखना ये है कि दूसरे दौर में मुलाकात के इस दूसरे सेशन में क्या मामलात जो है वो तह पाते हैं। इस मुलाकात के बाद चौधरी बरादरान जो है वो बिलावल हाउस जाएंगे, जिसके बाद इस मुलाकात में क्या नताइज निकलते हैं, किस करवट ये ऊँट बैठता है, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से क्या फ़ैसले होते हैं, ये तमाम मामला जो है वो खुलकर सामने आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया जहांगीर। और अपोजिशन की हुकूमत का घेराव करने की तैयारी मुस्लिम लीग काफ मरकजी हैसियत इख्तियार कर गई है। शहबाज शरीफ की चौधरी बरादरान के दर पर हाजिरी के बाद आसिफ अली जरदारी आज परवेज़ इलाही की मेज़बानी करेंगे। खाने की मेज़ पर पकने वाली सियासी खिचड़ी हजम होगी या अपोजिशन एक मरतबा फिर से नाकाम होगी, इस रिपोर्ट में देखते हैं। हमारे आंगन में आ जाओ, मिलकर खिलाएंगे सियासी फूल। तब्दीली सरकार को चलता करने का ख्वाब आंखों में सजाए नून लीगी क़यादत ने 14 साल बाद चौधरी बरादरान के दर पर माथा टेका, मगर मुराद बर न आई। आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तमाशा चल रहा है, तमाशा चल रहा है।
तेल देखो और तेल की धार देखो। चौधरी बरादरान के दो टोक जवाब के बावजूद ऑपोजिशन एड़ी चोटी का जोर लगाते नहीं थक रही। बिलावल हाउस लाहौर में शहबाज शरीफ से मिलने के बाद आसिफ जरदारी ने काफ लीगी क़यादत की हिमायत हासिल करने का बीड़ा उठाया। कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो। आसिफ जरदारी पंजाब की वजारत आला से बढ़कर कोई पेशकश करेंगे या कुछ और, लेकिन जियाले अपनी क़यादत से कह रहे हैं जरा फूंक फूंक के रखना कदम। आजमूदा को क्या आजमाना, पर अगर वो आजमाना चाहते हैं तो आजमा लें। दुआ गो हूं कि हमारी जमात इनसे बच बचा के ही निकल जाए तो बेहतर है। पुराना चावल पुराना ही होता है। अब देखना ये है कि मफाहमत के बादशाह का जादू चलता है या फिर हुकूमत मुखालिफ ऑपोजिशन के मिशन पर चौधरी पड़ते हैं भारी। अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है। तमा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन के कातलों को 6 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफ़ियों ने सिंध असम्बली के बाहर धरना दिया और असम्बली की कार्रवाई का बॉयकॉट भी किया। खुर्शीद आलम इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। शहर के बीचों बीच दिन दिहाड़े अत्थर मतीन के कत्ल को 6 दिन गुजर गए हैं, लेकिन बेहिस सिंध हुकूमत और पुलिस दावों से आगे नहीं बढ़ सकी है। कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ जर्नलिस्ट ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने अपने एहतजाज को आगे बढ़ाते हुए कराची प्रेस क्लब से रैली निकाली और सिंध असेंबली के बाहर धरना दिया। आज हम सिंध असेंबली के सामने हैं तो कल हम सीएम हाउस के सामने बैठ सकते हैं, हम गवर्नर हाउस के सामने जा सकते हैं, और अगर हमें वहां भी इंसाफ ना मिला तो फिर हम कोर कमांडर के ऑफिस के सामने जाके बैठेंगे। शहीद अतहर मतीन के भाई तारिक मतीन ने कहा कि हम लाकानूनियत के खिलाफ हुकूमत को जगाने आए हैं। शहर में राहज़नी है, उन्हें दिखता नहीं है। सड़क सड़क पे स्ट्रीट क्रिमिनल है, उन्हें दिखता नहीं है। अंधों को दिखाने आए हैं, बहरों को सुनाने आए हैं, सोतों को जगाने आए हैं, और हम इन्हें बताने आए हैं कि ये जिम्मेदार हैं। अतहर मतीन के कत्ल के खिलाफ पीटीआई के अरकान सिंध असेंबली ने भी एहतजाज किया, जबकि कातिलों को कानून के कटहरे में न लाने पर सहाफियों ने असेंबली के इजलास का बॉयकॉट किया। असेंबली के बाहर सहाफियों के धरने में तहरीक इंसाफ, MQM और जमात इस्लामी समेत दीगर सियासी जमातों के रहनुमा भी यकजहती के लिए शरीक हुए और कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने शहीद अतहर मतीन का मामला सिंध असम्बली में उठा दिया। समा के सीनियर प्रोड्यूसर की तस्वीर लहराते हुए बोले, जो काम रखवालों का था वो बहादुर सहाफ़ी ने कर दिखाया। शहरी को लुटने से बचाने के लिए अपनी जान दे डाली। ऑपोजिशन लीडर ने सिंध में ख़वातीन को हिरासा किए जाने के वाक़यात का भी जिक्र किया और दुआ की अपील भी की। एक शहीद सहाफ़ी, एक दलेर सहाफ़ी, एक शुजाअत का निशान सहाफ़ी कि जिसने किसी के लिए जान दे दी। जो काम किसी और का था, रखवालों का था कि कोई लुट रहा हो तो उसको बचाए, लेकिन इस शहीद ने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए, शुजाअत का मुजाहरा करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी किसी को बचाने के लिए, और उसको भी रोड पर शहीद कर दिया गया। 2022 में 16 लोग ऐसे हैं कि जिनको रोड पर डाकुओं ने शहीद कर दिया। रोड पर खुलेआम दंदनाते डाकुओं ने उन तमाम शोधा के लिए दुआ फरमाइए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, तहकीकाती इदारे अतहर मतीन कत्ल केस पर काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही हो चुकी है। क़यास आराइयों से गुरेज करें, केस हल करके तफसीलात से आगाह करेंगे। तहकीकाती इदारे काम कर रहे हैं इस मामले को, वो चीज़ों के ऊपर बड़ी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है। निशानदेही बहुत सारी चीज़ों की हो गई है, लेकिन ये तफसीलात अभी मीडिया पर शेयर नहीं करनी चाहिए। हम खुदारा क़यास आराई से हम लोग गुरेज करें। ऑफिशियल स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा जब इस केस की कंप्लीट गुत्थी को सॉल्व करके जिन लोगों ने भी ये वहशियाना काम किया था अतहर मतीन साहब के साथ, ये और लोगों के साथ, शहरियों के साथ जिनकी जानें गई हैं,
पुलिस इंशाल्लाह उसके ऊपर है और वज़ीर आला सिंध ने कैटेगोरिकली IG साहब हो, कराची पुलिस चीफ हो, ये तमाम पुलिस अफसरान हो, उनको कैटेगोरिकली कहा है कि इस चीज़ों को हल करने के लिए आप सबको मैदान अमल में होने की ज़रूरत है और इस मामले को सॉल्व करने इंशाल्लाह आपको इसमें बेहतरी नज़र आएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने कहा है कि सिंध हुकूमत शहरियों की जान और माल की हिफाजत में नाकाम हो चुकी है। वज़ीर आला सिंध से अपील है कि वो रेंजर्स को इख्तियारात दें। हमारे ख़त के बाद हम बड़े मशकूर हैं शेख रशीद साहब के कि उन्होंने कल ऑफ़र किया है हुकूमत सिंध को कि कराची के जितने भी थाने हैं वहाँ पे आप रेंजर्स को बिठा दें, क्योंकि आप तो काम नहीं कर पा रहे हैं ना, आप तो नाकाम हो गए हैं। एक दफ़ा वापस डिमांड कर रहा हूँ वज़ीर आला सिंध से, हुकूमत सिंध से कि रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाएँ, रेंजर्स को वो तमाम कानूनी जो है मदद फराम की जाए जिसके ज़रिए रेंजर्स जो है ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स को जो है पकड़ सकें, उनके खिलाफ एक्शन ले सकें और उनको डिटेन भी कर सकें ताकि फर्दर ऑन इन्वेस्टिगेशंस हो सकें। तो बिलावल जरदारी की तस्वीरें लगाने के लिए इनके पास पैसे हैं, पीपल्स पार्टी के झंडे खम्भों में लगाने के लिए इनके पास पैसे हैं, लेकिन पुलिस को सेफ सिटी और कैमरेस फराहम करने के लिए इन नालायकों के पास पैसा नहीं है। कराची में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए बहरी उमूर महमूद मौलवी और माहीगीरों के नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। कराची बंदरगाह पर 28 घंटे से रुकी हुई जहाज़ों की आमदरफ़्त बहाल हो गई है। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, ये बताएं कि 28 घंटे चैनल बंद रहा, इससे कितना नुकसान हुआ और क्या तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं माहीगीरों के? जी देखिए, चैनल बंद रहने से पूरे 15 जहाज जो है वो आने और जाने वाले जो है वो रुके रहे, उनको बर्फ नहीं मिली, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट रुकी रही। उसकी वजह से जो है यकीनन करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ होगा। वजारत बहरी उमूर के जो मुशीर वज़ीर आज़म के महमूद मौलवी, KPT के चेयरमैन और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के हुक्काम ने आज जो है वो 2 दफा मुज़ाकरात किए। शाम को जो मुज़ाकरात वो माहीगीरों के नुमाइंदों के साथ वो कामयाब हो गए। महमूद मौलवी ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि आपको जो है बलूचिस्तान में जो शिकार पर मछली की शिकार पर पाबंदी है इसका मसला हल करा के दिया जाएगा और जो है रात में जो है शिकार के लिए जाने वाली लांचों पे भी जो पाबंदियां नरम की जाएंगी। इस हवाले से जो है वो इन मसाइल को लेकर माहीगीरों ने कल से जो है वो चैनल बंद कर रखा था, सैकड़ों कश्तियां समंदर में खड़ी कर दी थी, जिसकी वजह से जो है 28 घंटे जो है वो नेविगेशन चैनल KPT का बंद रहा था। जी बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस पर सियासी जमातों से राब्ते का फैसला कर लिया है। सियासी जमातों के नुमाइंदों का इजलास जल्द बुलाया जाएगा। मजीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुल्करनैन इकबाल, अब ये फैसला क्यों कर किया गया वो भी बताएं और अब कब इस मामले को आगे बढ़ाएंगे ये भी बताइए। हाँ देखिए, जल्द इस हवाले से हम पेशरफ इलेक्शन कमीशन के यहाँ से मुतवक्के आज एक दोबारा इजलास हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आला सतह, जिसमें इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से न सिर्फ उसका दोबारा जायजा लिया गया बल्कि गुज़श्ता रोज जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की अटॉर्नी जनरल से मुलाकात हुई थी कानूनी टीम के हमरा, उसके नताइज से भी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने आगाह करते हुए बताया कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के साथ मुलाकात में कुछ ठोस पेशरफ नहीं हो सकी ऑर्डिनेंस की वापसी के हवाले से, और उनका ये मौक़िफ़ था कि हुकूमत ने कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक ही ऑर्डिनेंस जारी किया है। इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर मुशावरत से ये फैसला किया कि जो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी जमातें हैं, उनको इस मामले में शामिल किया जाएगा और उनको इस मामले पे उनसे मुशावरत की जाएगी कि कोड ऑफ कंडक्ट में जो हालिया तरमीम की गई है हुकूमत की जानिब से बदरी ऑर्डिनेंस, इसके ऊपर आगे का क्या लाएअमल अपनाया जाए और इस हवाले से जल्द ही तमाम सियासी जमातों से राब्ते करके उनका इजलास भी बुलाए जाने का बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 20 के तहत गिरफ्तारी करने से रोक दिया है। अदालत ने खबरदार किया है कि अगर FIA के SOPs के खिलाफ वर्जी की गई तो DG और सेक्रेटरी दाखिला जिम्मेदार होंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए कल तक जवाब तलब कर लिया है। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से बड़ा हुक्म जारी कर दिया। FIA पैका सेक्शन 20 के तहत कोई गिरफ्तारी नहीं कर सकेगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदारों का तयन भी कर दिया। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ FUJ की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इस्तफसार किया कि ऑर्डिनेंस से पैका के किस सेक्शन में तरमीम की गई। वकील आदिल अजीज काजी ने जवाब दिया, एक तरमीम के अलावा नई सेक्शन भी शामिल की गई। सेक्शन 20 में तरमीम करके सजा 3 साल से 5 साल कर दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जिम्बाब्वे और युगंडा भी हतक इज्जत को फौजदारी कानून से निकाल रहे हैं। अवामी शख्स के लिए तो हतक इज्जत कानून होना ही नहीं चाहिए। अदालत ने इस केस के फैसले तक FIA को सेक्शन 20 के तहत कोई गिरफ्तारी करने से रोक दिया और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए कल तलब कर लिया।
पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस पर MQM के 2 वज़रा आमने सामने। अमीनुल हक ने फरोग नसीम के बनाए हुए कानून को निशाने पर रख लिया। कानून वापस लेने और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से तरमीम के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। ज़हीर अली खान की रिपोर्ट देखिए। का वाला है, उसकी ड्राफ्टिंग मैंने की है, तो लिहाजा उसमें ज़्यादा डिटेल से हम बात कर सकेंगे। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम की तख्लीक है, मगर उनकी अपनी जमात MQM पाकिस्तान ने ही इसे मुस्तरद कर दिया। मुत्तहिदा से ताल्लुक रखने वाले वफाकी वजीर IT अमीनुल हक का वजीर आज़म को खत तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अपोजिशन जमातों और मीडिया तंजीमों जैसे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। तरमीम पर एतमाद में न लेने का शिकवा भी किया। अमीनुल हक ने खत में लिखा है कि MQM पैका एक्ट में तरामीम से मुत्तफिक नहीं, बिला जमानत गिरफ्तारी और जाली खबर की तशरीह न होने पर बेचैनी है। सहाफती, इंसानी हकूक की तंजीमों और माहिरीन की राय ली जाती तो बेहतर था। तरमीमी ऑर्डिनेंस की वजह से सहाफ़ी और मीडिया तंजीमें हुकूमत के खिलाफ हो रही हैं। वफाकी वजीर का वजीर आज़म से मजीद कहना है कि हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन अवाम के बुनियादी हकूक के खिलाफ कवानीन की हिमायत किसी सूरत नहीं कर सकते। ऑर्डिनेंस इज़हार राय की आज़ादी के खिलाफ और हुकूमत की अवामी हिमायत के लिए भी खतरा है। अब सहाफती तंजीमों और स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद नई तरामीम का इजरा कराएं। जियाले रहनुमा बैरिस्टर एतजाज़ एहसन ने पैका कानून की हिमायत कर दी है। कहते हैं कि झूठी खबरों के खिलाफ एक्ट में तरमीम ठीक है। मुस्लिम लीग नून का डरना भी वजह है, क्योंकि वो झूठी खबरों के जरिए अदालतों और आवाम को गुमराह करने में मसरूफ हैं। कानून तो ये वजह है, मकसद इसका है फेक न्यूज को पकड़ने वाला। फेक न्यूज की कैटेगरी में वो आता है जो मिसाल के तौर पे एक बिल्कुल झूठी खबर बना के और लोगों में बेचना, जिसमें मरियम ने कहा मेरी कोई जायदाद ही कोई नहीं है, न पाकिस्तान में न पाए, बाद में सारी लेकर आई। एक वीडियो चलाती है, कहती है ये वीडियो दुरुस्त है। मैं कहता हूँ, वही चैलेंज करता हूँ कि अगर दुरुस्त है तो आप अदालत में पेश करो और मियाँ साहब को रिलीफ लेके दो। अब उन्होंने चूंकि फैब्रिकेट किया है, वो फेक न्यूज है। जो लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स हैं जिनसे नवाज शरीफ बाहर चला गया, वो बनाई ही इसलिए गए हैं कि वो अदालत को, अवाम को गुमराह किया जाए। साकिब निसार का ऑडियो टेप, राना शमीम का एफिडेविट। फेक न्यूज वो है वो जो सारी मरियम कहती है कि मेरे पास और भी सबूत हैं, आप मेरे साथ छेड़छाड़ न करना, शरारत न करना, ये फेक न्यूज है। नून लीग डरती किस लिए है फेक न्यूज के कानून से? क्योंकि उससे इनकी फेक न्यूज काबिले दस्तंदाजी पुलिस जुर्म में आ जाती है। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए तहरीक इंसाफ हुकूमत की कोशिशें। अटॉर्नी जनरल की जानिब से लिखा गया खत साबिक वज़ीर आज़म के गैर मुल्की मौलिज डॉक्टर डेविड लॉरेंस को मौसूल हो गया। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने मुतल्लिका हुकाम को आगाह किया कि डॉक्टर डेविड लॉरेंस को अटॉर्नी जनरल का खत मिल गया है। अटॉर्नी जनरल ने डॉक्टर डेविड लॉरेंस से हुकूमत पाकिस्तान के नामजद तिब्बी माहिरीन के साथ मुलाकात के लिए वक्त मांगा था। नवाज शरीफ के बरतानवी डॉक्टर से 22 फरवरी से 13 मार्च के दरमियान का वक्त मांगा गया है। PSL की जो बात है वो किसी दूसरी लीग में कहाँ। माइकल वॉन कहते हैं PSL का कम दौरानिया और बेहतरीन प्लेयर्स की शिरकत इसे दीगर लीग से मुनफरिद बनाती है। इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन ने ट्वीट किया, पाकिस्तान सुपर लीग में बेहतरीन प्लेयर्स शरीक हुए, दीगर टूर्नामेंट्स के मुकाबले में कम मैचेस खेले जाते हैं, इस तरह इवेंट का दौरानिया कम हो जाता है। दीगर T20 लीग्स में ये खुसूसियात नहीं। और इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।